Hi. Hello, how are you? I'm good, sir. How are you doing? I'm very well. I'm very well. Sir, the starting of the show खाली formal करना है, so that starting part I will do little formally. No problem. Sir, I must confess to everyone who is watching today and who is going to watch this video again that I have met many politicians from across different political parties. But the word politician usually gets a reaction in some cases from young people that is negative. But if I had to use one word to describe you, I would use an oxymoron. And the people who are watching below, oxymoron is not an abuse in English. The word that I will use in order to describe you, sir, is that you've been the youngest mayor in Maharashtra. You've been the first chief minister from the Bharatiya Janata Party who's completed a 5-year term in the state. You have many firsts to yourself, sir, but the one way I will describe you is that you are an honest politician. And sir, honest politician don't go together, sir. Honest and politician never goes together, but in your case, it goes together. So, Shri Devenji Fadnavis, welcome to I'm on Officials Kuch To Karo Na. Thank you very much. बहुत धन्यवाद. And I belong to the party which is headed by Shri Narendra Modi ji. और मुझे लगता है कि the honest politician definition, if you ask me to define it in one word, I would say that is Narendra Modi. So hi everybody, सबको नमस्कार. I would have clapped, sir, but I can't clap because एक हाथ से मैं phone पकड़ रहा हूँ. So whenever I clap, that time the clap is like this. Sir, did you cough on purpose or is this is not coronavirus? No. That's for sure. It's not corona classic. It's not corona. But sir, पहला प्रश्न, sir, that your life in terms of coronavirus, after the coronavirus pandemic, sir, कुछ बदलाव आए in your normal day-to-day routine of Devenji Fadnavis? Has there been a change in your routine in comparison to your normal day-to-day routine? Or sir, is the aloo poha consumption increasing or is it decreasing? See, lots and lots of changes, but one thing remains unchanged. That is aloo poha. That will never change in my life. So I think basically I'm spending more time at home, but I think I'm trying to utilize this time for a better cause. So every day I'm doing video conferencing, contacting many people, audio bridges. I'm talking to my party fellows. In Maharashtra, actually, we started feeding the needy program as mandated by our Honorable Prime Minister. And I'm very happy to tell you that by now, we have actually given at least a cooked meal or a ration to around 54 lakh people. And I think in every district we have done it. And around 125 karyakartas of BJP are working every day on this cause. So I think that is a huge thing which we are trying to do. Again, these are the times when we need to support our governments. So I'm trying to support both the governments, central government and state government. I'm trying to give them certain suggestions wherever I find that there are certain lacunae. I talk to the chief minister, I write him a letter, I tell him that I think that this has to be done like this. So a lot of things, but apart from that, still I have a lot of time. So for a change now, I can play. Pardon? So you can play. Sorry, you were saying, sir, you can play. No, I can play with my daughter. Okay. I can sit and chat with my wife, with my mother, and also I think I can do a little bit of workout. क्योंकि वजन बहुत बढ़ रहा था तो उसको थोड़ा कंट्रोल में करने का एक समय मिल गया. तो मुझे लगता है कि आई एम यूटिलाइजिंग माय डे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपने आंसर नहीं किया सर. सर आलू पोहा का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है सर? इंक्रीज ही होगा ना यार, घर पे बैठेंगे तो डिक्रीज थोड़ी होगा. दिन में रात में कभी भी अब देखो नींद थोड़ी आती है, तो रात में तो
नेटफ्लिक्स देखते हुए, प्राइम देखते हुए भी कुछ ना कुछ मुंह तो चलाना ही पड़ता है ना। सर आप नेटफ्लिक्स देखते हो? अभी तो मैं प्राइम देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, लेकिन अभी मैं जरा प्राइम पे NCIS देख रहा हूँ और मेरे 8 सीजन पूरे हो गए, अभी 9वां सीजन चल रहा है। See, this is why you are such a relatable politician. कोई politician show पे आके ऐसे नहीं बोलता कि I'm watching Amazon Prime, and all the young people who see this will relate to something like this. I'm glad you found time to come here, sir. पर सर एक शिकायत है सर एक ही शिकायत है आपसे। RSS जो संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर जब भी वो आपको कॉल करते हैं, मुझे बताया गया है कि आप उनके सब कॉल आंसर करते हैं सर। बट सर दूसरा भी RSS है सर ऋषभ संजय शाह, सर जब भी मैं कॉल करता हूँ जो अलग है, संघ से बहुत अलग है, पर जो मैं जब आपको कॉल करता हूँ सर, तो सर आप दूसरी बार या तीसरी बार में आंसर करते, पहली बार में नहीं आंसर करते सर। द नेशन वांट्स टू नो व्हाई। ऐसा है कि वो RSS का जब कॉल आता है जी, तो नेशन के लिए कॉल होता है। ये RSS का जब कॉल आता है तब भी कॉल तो नेशन के लिए होता है, लेकिन यूथ के लिए होता है, तो इसलिए पहले वो कॉल फिर ये कॉल। No, but sir, you're really a role model and an exemplary leader for young India. Sir, आप जो काम करते हो वो देख के I feel, and I think that all of India, when we see you work, we feel like you are the real life नायक। जैसे अनिल कपूर स्क्रीन में से निकल के he is now on field and he's actually doing things. We feel honestly, and I'm saying this, I said this to you before the elections in September, and I'm saying the same thing, sir, to you, that for me personally, you are a great role model, not just for me but for young people. And so the reason I mention this is because I know that you work just जितने भी आपने हंसी मजाक करके आपने जैसे बताया that you know आप ये भी करते, but I know आपका अभी भी 21 hour days there. At 1:30 or 2:30 in the night you responded to my message, I remember, and I spoke to you at 1:30 in the night. Mumbai, sir, is undergoing the worst scenario, and your thoughts on the pandemic in Mumbai, sir? देखिए, that is true because I think the highest number of incidences of corona are in Mumbai, and in places like Worli or Dharavi, we are watching area spread. I won't say that it's a community spread because it's confined to an area, but we could see area spread, and I think the way it is rising, it's absolutely alarming. So I think on one hand, we need to do the social distancing. We need to practice social distancing very tightly, very focusedly, and at the same time, I think basically we need to break this chain. And at least in Mumbai, I think we need to do things in a different way. I think the government is trying their best. I won't say that government is doing nothing, but still we need to go more aggressive in Mumbai, because we have seen that even in the cluster containment areas, we don't see that social distancing is practiced. So we need to tell people that the cluster containment areas are the red zones, and if in the red zones, if the proper chain of corona is not break, then we will face a lot of community transmission. So that is one thing. Secondly, I think that we need to go more aggressive on making people quarantine, on testing people, because unless when there are high risk people, unless we check all the high risk people, we won't be able to contain this chain. Today itself, I wrote a letter to Honorable Chief Minister, and I told him that the Mumbai Municipal Commissioner BMC has come out with an order that they won't be screening asymptomatic patients or asymptomatic people. I said, if you look at the spread of corona, and a report which is made by none other than Medical Education Department of Government of Maharashtra on 18th April, the report says that amongst all the patients which are present in Maharashtra,
around 63% to 79% are asymptomatic patients. So if the asymptomatic patients, the number is so high, and if we say that we will not test the asymptomatic people, then I think a huge chunk will be left out, and these will be like those among those who are infected will be like time bombs who will be infecting others. So I think we need to change the strategy. It is not just about number. If we try to suppress the number, if we try to shy away from that, then we'll be facing a bigger problem. So we need to confront it. We need to break it, come what may. Only, sir, what you said is very true, sir. I only shy away from one thing, sir. When politicians get angry, then I run away. So you don't have to run away from me. I never get angry. I'm a very patient person. I today, if you see my Instagram post, sir, I have said with no disrespect and with actually from the bottom of my heart, I have said he's the most affable and the cutest politician in all of India. Please tell this to my wife. Please tell this to my wife. In fact, my daughter agrees to what you have said. My daughter agrees. But please convince this to my wife. Sir, if you can't convince, where will we convince, sir? But sir, touching upon the next issue, sir, आपने जैसे बताया that मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार कोशिश कर रही है, and आप जो भी विचार है आप माननीय मुख्यमंत्री जी को you forward it. But there has been a growing cry. I today read this again in papers also कि मुंबई में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, and in order to control that, I know, sir, secretly you are smiling because my Hindi is very bad, like always. You are smiling, but मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं कोशिश हिंदी में कर रहा हूँ. So, but is it so bad that we should call in the Indian Army, or do you think that is an extreme measure? देखिए, नॉर्मली आर्मी को बुलाना ये एक्सट्रीम मेजर ही होता है, वो अंत में ही होता है जी. लेकिन अगर हमारे क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान में जो हमारे रेड जोन्स है उसमें अगर हम इस आउटब्रेक को नहीं रोक पाए, और अगर उसके अंदर जिस प्रकार से ये चेन को ब्रेक करना अगर हम ब्रेक नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़े डिजास्टर की ओर जाएंगे. और इसलिए कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमने आर्मी बुलानी चाहिए, और एटलीस्ट रेड जोन्स शुड बी हैंडेड ओवर टू आर्मी. मेरा अपना मानना है कि आखिर ये निर्णय तो सरकार को करना पड़ता है और सरकार इस पर उचित निर्णय करे. पर व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इफ नॉट आर्मी, तो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे पास हमारी एसआरपीएफ है. इनको तो कम से कम इन क्लस्टर कंटेनमेंट जोन्स में या रेड जोन्स में उनका प्रेजेंस बढ़ाकर, उनका फ्लैग मार्च कराकर, वहां पर उनके थोड़ा डिसिप्लिन वे से अगर हम लोग उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे तो फायदा होगा. देखिए, आर्मी से फायदा क्या होता है, आर्मी में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है, और उनको ये पता होता है कि किसी भी पैंडेमिक में अपने आप को बचाकर लोगों को मदद कैसे करनी है और सिचुएशन पे कंट्रोल कैसा करना है. कई बार क्या होता है कि जो थोड़े अनट्रेंड होते हैं या सेमी ट्रेंड होते हैं या पूरे तरीके से पैंडेमिक हैंडल करने को ट्रेंड जो नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को उतरने के बाद कई बार फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं वो भी पैंडेमिक का शिकार हो जाते हैं. इसलिए जब एक्सट्रीम परिस्थितियां आती है तो हमने हमेशा देखा है किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम डिजास्टर में हमारी आर्मी जिस प्रकार से काम करती है वैसे कोई नहीं करता. लेकिन अब ये परिस्थिति में सरकार जरूर विचार करेगी, और सरकार को आवश्यकता लगेगी तो सरकार आर्मी लाएगी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुंबई के लोगों में से बहुत ही आवाज आ रही है, बिकॉज टुडे यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु हैज आस्क्ड मी दिस. आज दिन भर में जितने लोगों से मैंने बात की उन्होंने मुझे कहा जी मोदी जी को कहिए और आर्मी को लाइए. मैंने कहा ऐसा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर सीधे आर्मी भेज दे. हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को ये डिसाइड करना होता है, और स्टेट फिर सेंटर से बात करके आर्मी को बुलवाता है. जब स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है, ऐसे समय सीधे सेंटर उसको भेज दे, ये अलग बात है. पर नॉर्मल डेमोक्रेटिक हमारे स्ट्रक्चर में इस प्रकार से हम भेज नहीं सकते. तो मुझे लगता है कि इस पर उचित जो विचार है वो निश्चित हमारे मुख्यमंत्री जी भी करेंगे. सर, आपने जैसे बताया दैट आर्मी can control a situation better than normal people. So I have to tell you one small incident. I also tried to join the army. Really, I had met General Bipin Rawat sir once, and he told me saying,
आप लोग जैसे जो बच्चे रहते हैं वो बिजनेस संभालते हैं या दूसरी चीज करते हैं, आप लोग आर्मी में ज्वाइन नहीं करते, you don't volunteer for the army. So then I removed my coat. I had worn 2 coats, okay sir. So I removed my coats, 2 coats, and then I showed him myself. I showed him how thin I am. Then I said, sir, do you really think I will join in the army, or will you really take me in the army? And then his reaction was exactly your reaction. But sir, tell me one thing, sir, because you mentioned the Indian Army, there are so many young people, urban youth, who are going to watch this. They don't enroll in the army for a variety of reasons. Your plea on behalf of the Indian Army, and also just generally, do you think young people, like say for example me, should at least have 1 or 2 years of training in the army? I think that will be a great idea. Although since we are a very big nation, so we have huge population, so we have never made it compulsory. There are nations like Israel where it is compulsory. In many countries. To serve the nation in army for a few years is compulsory. In India, it's not compulsory. But I think, it's a great job. Somebody joining the army. Look at this, sir. Sir, I lift dumbbells every day with this, but कुछ नहीं होता. देखो, आप में और मेरे में फर्क यह है कि मैं खाना भी छोड़ दूं तो हवा खा के मोटा हो जाता हूं, और तुम कितना भी खा लो तब भी तुम पर कोई फैट का कोई लेयर चढ़ता नहीं है. अगर ये इसमें हम कुछ शेयर कर सकते हैं तो मेरे 20-25 किलो आपको मैं भेज देता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और इसका आउटसोर्सिंग भी नहीं हो सकता है. नहीं तो मैं आउटसोर्सिंग भी कर देता आपको कि भाई मेरे तरफ से वर्कआउट करके मेरे किलोस कुछ ले लो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आर्मी का जो हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है, देखिए आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, कितने भी बड़े पॉलिटिशियन बन जाइए, पर इस देश में एक बात मैंने देखी है, जिस समय हमारा कोई जवान सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद होता है, और जिस समय शहीद अपने गांव में आता है तो पूरा गांव, पूरा जिला उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आता है. और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा हीरो आ जाए, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, और लोगों के लिए हीरो वो हमारा आर्मी का सोल्जर होता है. और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ऋषभ, जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय हमारे महाराष्ट्र स्टेट से जो बॉर्डर पर लड़ते थे या शहीद होते थे, उनको स्टेट की ओर से केवल 5 लाख रुपए मिलते थे. मैंने कहा कि हमारे जो जवान है उनकी शहादत की कीमत पैसे में तो नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट वी कैन गिव देम रिस्पेक्ट. और इसलिए मैंने निर्णय किया, और मैंने ये कहा कि जो भी हमारा जवान शहीद होगा उसको 5 लाख रुपए नहीं, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा. और उसके बाद जितने जवान महाराष्ट्र से शहीद होकर हमारे यहाँ आते हैं, उनके परिवारों को विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स 1 करोड़ रुपए हम देते हैं. Salute, sir. This is the kind of work which is why I say that you are a great role model, sir. जो दूसरा पार्ट है of this conversation, I want to take you towards that. आपने outsourcing की बात की. Lot of work is seeming to be outsourced, sir, to other people. The state government and the central government are trying to do their best, sir. One suggestion that you would give to the central government, and one suggestion, sir, that you would give to the state government to make things better? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक सजेशन देना ये बड़ा कठिन है. सजेशंस तो मेरे पास काफी है, बट मुझे लगता है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जितने जल्दी हम लोग स्थिति नॉर्मल ला सकते हैं उसका प्रयास करने की आवश्यकता है. तो मुझे लगता है कि उस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क भी कर रहा है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा सजेशन देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती. स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रहा है. स्टेट गवर्नमेंट को मैं लगातार इतना ही सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स नॉट हाइड द नंबर, लेट्स फेस इट. हम लोग इसको फेस करें, और विशेष रूप से क्लस्टर कंटेनमेंट जोन जो तैयार किए हुए हैं, यहाँ पर बहुत कड़ाई के साथ हम लोग पेश आए. Sir, you did not give central government any recommendation because it's the same political party, no, sir. Because it's Bharatiya Janata Party. but sir, the second part of this segment is called Tum Bhi Karo Na, sir. So in Tum Bhi Karo Na, what can मेरे जैसे sir young people and younger than me also, there is a vast population, sir. हम घर बैठे बैठे sir क्या कर सकते हैं apart from Netflix and Amazon and family time? मेरी family तो मेरे से इतनी थक गई
then when I told them that Devanshi is doing an interview with me, then they said, अच्छा और 2-3 दिन रुक लो, बाद में you also go. बाद में you go with everyone and don't come back again. And then luckily they didn't say go Rishabh go, but the emotion was pretty much that. Sir, तो family time Amazon और Netflix के अलावा सर घर पे क्या कर सकते हैं सर? And कोरोना वायरस के बारे में क्या कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो हम लोगों को वी हैव टू सेट अ न्यू नॉर्मल. एंड व्हाट इज न्यू नॉर्मल? तो मुझे लगता है कि एक सोशल बिहेवियर में जो द चेंज ऑफ सोशल बिहेवियर इज अ न्यू नॉर्मल. हम लोगों को अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months और मे बी ईयर, हम लोग बाहर जाते समय गॉगल लेते हैं, वैलेट लेते हैं और जो जो चीजें हमको लगती है, मोबाइल तो रखते ही रखते हैं. ऐसा मास्क इज अ न्यू नॉर्मल. हम सबको मास्क लेना ही पड़ेगा. वॉशिंग हैंड्स इज अ न्यू नॉर्मल. हमको हैंड वॉश करने ही पड़ेंगे. हैंड सैनिटाइजर्स इज अ न्यू नॉर्मल. हमारे घर में कोई आता है तो उसको चाय देते हैं, सुपारी देते हैं, खाने को देते हैं, वैसे उसको हैंड सैनिटाइजर देना इज अ न्यू नॉर्मल. तो हम लोगों को एक सोशल बिहेवियर का चेंज, सी अंटिल एंड अनलेस आवर साइंटिस्ट globally who are working come out with a vaccine against corona, the only way we can fight this corona is through our social behavior. और इसलिए जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है, करेक्ट, बहुत सही बात आपने की, करेक्ट. तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है, हम सभी को बिहेवियरल चेंज ये बहुत महत्व का है. और चलता है एटीट्यूड छोड़ देना पड़ेगा. मैंने किया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने भीड़ की तो क्या फर्क पड़ता है. ये चीज को अभी कुछ समय के लिए छोड़ देना पड़ेगा. और विशेषकर यंगस्टर्स को मैं कहना चाहता हूं कि हैंगिंग आउट इज फन, बट हैंगिंग आउट विद कोरोना इज नो फन. और इसलिए आने वाले हैंगिंग आउट विद कोरोना विल बी येट फन सर. हैंगिंग आउट विद कोरोना वायरस इज नॉट फन सर. But I said Corona, not Karina. No offense, no offense. No. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमको सबको समझनी पड़ेगी. और विशेष रूप से अभी इसको यंगर जनरेशन को ज्यादा प्रोपोगेट करना पड़ेगा. कई बार हम लोग ये कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि आप सीमा पर जाना चाहते थे, सैनिक बनना चाहते थे, नहीं बन पाए. बट हम हमारे सोशल लाइफ में तो वी कैन बी सोल्जर्स. करेक्ट. हमारी सोसाइटी के लिए तो वी कैन बी सोल्जर्स. तो ये चीजें अभी हम लोगों को अपनी आदतों में हम कैसे डालें, इसका विचार करना पड़ेगा. ये बहुत महत्वपूर्ण है. सर यही कारण से आयमन चालू किया था दैट यंग पीपल कैन सर्व द कंट्री आउटसाइड ऑफ बिजनेस, आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स, आउटसाइड ऑफ द आर्मी. दे कैन सर्व पीपल एंड विथ योर हेल्प वी विल कंटिन्यू टू सर्व पीपल बाय सेंडिंग मैसेजेस लाइक दिस. बट सर बिफोर वी मूव टू द फाइनल पार्ट, आखिर का क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ इन द सेकंड पार्ट कॉल्ड तुम भी करोना. इसमें द इशू इज सर, आपने जैसे बताया हैंगिंग आउट इज नॉट कूल बिकॉज हैंगिंग आउट विद कोरोना वायरस इज अ प्रॉब्लम. बट तो भी there are certain industrialists, business leaders, and some people you've tweeted about, and also Bandra what happened, the hanging out that was happening. But so what are your thoughts on situations like those, sir? देखिए, मुझे लगता है कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये केवल हमारे लिए खतरा नहीं पैदा करता, ये पूरे समाज के लिए खतरा पैदा करता है. आज मुझे बताइए कि जो घटना दिल्ली की मरकज में जमात में हुई, जी बिल्कुल, आज कुछ लोगों के कारण पूरे देश में कोरोना का इतना फैलाव हुआ कि 30% केसेस हैव इमर्ज फ्रॉम वन सिंगल कांग्रेगेशन. तो मुझे लगता है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. जो बांद्रा में हुआ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. और ऐसे समय कुछ लोग राजनीति कर देते हैं, कुछ गलत मैसेजेस दे देते हैं, कुछ गलत बात कर देते हैं. ये बिल्कुल गलत है. देखिए, ये आज एक व्यक्ति अगर इससे बाधित होता है, उसके परिवार के ऊपर क्या असर होता है. और ये तो पहली बीमारी है. इससे बाकी तो बीमारियों का अगर हम विचार करें तो जो इतनी कंटेजियस नहीं है और जो नॉर्मल हमारी बीमारियां है, तो हम बीमार पड़ते हैं तो घर वाले हमारी सेवा करते हैं और हमको ठीक करते हैं.
ये तो ऐसी बीमारी है कि जो हमारी सेवा करेगा वो भी घर जाएगा भगवान के। तो इसलिए मुझे लगता है ये सारी चीजें समझकर हम अगर अपनी केयर नहीं लेंगे तो हम दूसरे की भी नहीं ले पाएंगे। अपनी भी केयर लेनी ही पड़ेगी, औरों की भी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना ही पड़ेगा, और इस प्रकार की घटनाएं न हो इसका विचार करना ही पड़ेगा। और मुझे घर पे आज खाना पकाना ही पड़ेगा सर। But last part of the question, sir, is the last part of this conversation is what I wanted to ask you, sir. 21 दिन का लॉकडाउन था सर पहले, तो हम लोग ने पहले 21 क्वेश्चन बनाए थे, बट जब भी मैं 21 क्वेश्चन पूछता था लोगों को तो ऑटोमेटिकली तीसरे या चौथे क्वेश्चन पे लोग सो जाते थे। तो then I decided that we will ask only 3 or 4 questions in rapid fire in a light-hearted manner, and you have to answer honestly, sir. Remember, sir, you are the honest politician. Sir, aloo or poha, sir? Which one is your preference? If you had to choose between orange या मौसम्बी, sir? Orange, because I belong to Orange City. Sir, this integration, sir, one thing I have to learn from you, how you integrate everything from everywhere. But the next question, sir, I want to ask you is, who is your favorite politician outside of the Bharatiya Janata Party, who you have tremendous respect for? देखिए ऐसे तो कई लोग हैं, लेकिन जिनसे मेरा संबंध आया बीजेपी के बाहर, जैसे एक महाराष्ट्र पॉलिटिशियन थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी। ये बहुत ही मिनिस्टर भी रहे और ही डाइड वेरी यंग। बहुत ही बेहतरीन आदमी थे, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे। वो डॉक्टर भी थे, वो इंजीनियर भी थे, उन्होंने आईएएस भी किया था, और जितनी डिग्रियां शायद उनके पास थी मुझे नहीं लगता किसी के पास, पर केवल डिग्रियों से आदमी बड़ा नहीं होता, जो नॉलेज उनके पास था। और जिस प्रकार से उन्होंने संस्कृत की भी सेवा की, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कई हमारे जो डाइंग आर्ट्स है उसको जिस प्रकार से उन्होंने जीवित रखा, हमारा डाइंग नॉलेज है उसको उन्होंने जीवित रखा, हमारा जो एंशियंट विजडम है उसको उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि लीग से हटकर इस प्रकार के व्यक्ति थे, और इतना होते हुए भी बहुत हम्बल थे, और इसलिए मेरा चूंकि उनके साथ काफी संबंध आया, क्वाइट सीनियर टू मी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पार्टी के बाहर कोई व्यक्ति मुझे पसंद आया तो उनमें से एक व्यक्ति श्रीकांत जिचकर थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। That is a great answer. And sir, the last two questions I will ask you from my end, and that's it. One is a very important question, sir, क्योंकि ये पूरी देश में चर्चा हो रही है इस पे। सर, GST जो है सर, जो essential items पे लागू है सर, तो सर what is your thought process on the GST being levied on basic essentials? देखिए, GST को अगर हम समझ लेंगे कि ये टैक्स कैसा है जी, तो ये लास्ट पॉइंट का टैक्स है, और ये जो टैक्स है इसने टैक्सेस का कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिया है। और अगर हम कई चीजों में जीएसटी की जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में अगर हम टैक्स जीरो करते हैं और सेट ऑफ देते हैं तो सरकार को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, और हम जीरो करते और सेट ऑफ नहीं देते तो चीजों की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि सेट ऑफ न मिलने से वो सारी चीजों का जो कोई टैक्स उन्होंने पहले पे किया रॉ मटेरियल का, वो सारा लोड करते जाना पड़ेगा, उसका वापस कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। इसलिए कई बार सरकार को इसमें मिनिमम टैक्स ब्रैकेट में हमको कुछ चीजों को रखना ही पड़ता है, जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो रॉ मटेरियल इस प्रकार का यूज होता है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी देयर इज अ टैक्स, और मल्टीपल जगह वो रॉ मटेरियल यूज होता है। दूसरा ये है कि मेरा मानना है, देखिए आखिर सरकार तो चलनी है, देश को भी चलाना है, पैसा तो उसके लिए चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं खाओगे और ऐसे खाओगे फायदा क्या है? करेक्ट, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना ही पड़ेगा। तो टैक्स एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स में इतना अपफ्रंट जो जीएसटी है उतना अपफ्रंट कोई दूसरा टैक्स नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जब ये विचार करते हैं ना तो हमको ये ध्यान में नहीं आता कि इन चीजों के ऊपर पहले हम कितना टैक्स देते थे। जिस पर आज हम 5% टैक्स दे रहे हैं उस पर इससे पहले हिडन रूप में हम लोग 30%, 35% टैक्सेस देते थे।
जो वहां से निकलकर हम 5%, 9%, 12% पर आए, कई कई तो चीजों में 50% टैक्स देते थे हम, 50% तक टैक्स देते थे, जो आज एकदम 10-12% की ब्रैकेट्स में, वो उससे नीचे की ब्रैकेट्स में वो आए हैं। तो मुझे लगता है बोलने के लिए तो मुझे भी आप पूछोगे तो मैं कहूँगा भाई क्यों, हमारे तो एसेंशियल चीजों पर बिल्कुल हटा देना चाहिए। बट सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जैसे लोगों के मतलब लोगों का विचार जैसे करना पड़ता है, वैसे थोड़ा देश का विचार भी करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, धीरे धीरे एक बार अगर हमारा देश सेटल हो जाता है, काफी पैसा भी देश के पास है, अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, ऐसे समय कुछ चीजों को धीरे धीरे निकाला भी जाता है, कुछ निकाली भी गई है चीजें। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस चल रही है। एक साथ ये सारी चीजें सबको अगर कंसेशन दे देंगे तो सरकार ठन गोपाल हो जाएगी, और सरकार ठन गोपाल हो जाएगी तो विकास कैसे होगा? बिल्कुल सही सर। सर मेरा प्रश्न इस पे था क्योंकि मेरी दाढ़ी जो है सर वो बहुत बढ़ गई है और शेविंग क्रीम नहीं मिल रहा है सर। सर उसके लिए ये प्रश्न था। मैं आपको बताता हूं कि साबुन से भी अच्छा आप शेव कर सकते हैं। शेविंग क्रीम नहीं मिला तो उससे भी अच्छा होता है। और कुछ लोग तो ये जो दूध है ना, दूध उसको लगाकर शेव करते हैं, दही लगाकर शेव होता है। तो अलग अलग प्रयोग आप कर सकते हो। सर आप ये सब मत बोलिए, मेरी मम्मी सुन रही है, कल मैं कुछ मांगूंगा बोलेगी कि दूध लो और दाढ़ी कर लो। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड सर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द एंटायर नेशन वांट्स टू नो, Arnab Goswami at 9 p.m. will play this again sir on repeat. It is a very important question sir. Sir, youth को address करने के लिए which is your favorite platform? Your two options are sir. One is India's international movement to unite nations, and second one sir is IIMUN. Which out of these two is your favorite platform? It's a very difficult question. तो मैं दोनों को 50-50 मार्क्स दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से जिस प्लेटफॉर्म पर ऋषभ का बैनर होगा उस पर मैं जाऊंगा। But sir, no, but you're very sweet and very kind. The last question was obviously a jovial question, but let me, if with your permission, sir, जो audience no, but let me tell you, it's a great platform, Rishabh. It's a great platform. I have been there twice, and I've seen it from very beginning. I think it's a great platform which you and your friends have created. Thank you so much, sir. Sir, it's not me; it's all the people who are watching this entire live. These are the ones who've actually created it. And sir, because they are all been watching, sir, उनके और से can I take Instagram पे जो questions वो लोग डालते हैं, तो उसमें से can I open and ask a couple of questions? हाँ जी, please. Correct, sir. So the first question I will just take is, कब तक होगा सर ये लॉकडाउन? That is the first question, and I think the entire nation wants to know this, sir. देखिए, लॉकडाउन तो मुझे लगता है कि अभी कल से ईज होना शुरू हो रहा है, और नेशनल लॉकडाउन तो 3 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन जो रेड जोन्स है, वो रेड जोन्स में हम एक दिन में लॉकडाउन खत्म नहीं कर सकते। तो रेड जोन्स में हम लोगों को लॉकडाउन रखना पड़ेगा, उसकी कोई नई स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक एग्जिट पॉलिसी भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी भर तो लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है। तो पहले ओवरऑल जो हमारे ऐसे जोन्स है कि जिसमें मौतें कम हुई है, जिसमें कोरोना के इंसिडेंसेस कम हुए हैं, ऐसे पूरे फ्री होंगे। जिसमें मॉडरेट हुए हैं उसको थोड़ा फेज करके फ्री किया जाएगा, और बचे हुए भी फ्री होंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे रेड जोन जो है उसने 2 तारीख का सपना नहीं देखना चाहिए, 3 तारीख का। उसने थोड़ा और आगे जाकर मतलब उनका लॉकडाउन खुलेगा। सो सर बेसिकली सर जहां मैं रहता हूँ सर वहां तो 3rd मई को चालू नहीं होगा। 3rd May is not going to, we are not going to start working on 3rd May. नहीं, लेट्स होप दैट यू विल स्टार्ट। फिंगर्स उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर बट उम्मीद पे बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं सर, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द बीजेपी एंड द शिवसेना टू कम टुगेदर एट द सेंटर ऑफ द स्टेट? इज दिस हैपनिंग सर एनी टाइम सून? देखिए, राजनीति में
कोई भी चीज नहीं हो सकती ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नेवर से नेवर होता है राजनीति में। पर अभी मुझे इसकी तुरंत तो कोई मतलब ऐसी परिस्थितियां दिखती नहीं है। आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन वेरी नियर फ्यूचर। बाकी आगे देखते हैं। Very politically correct answer, sir. Very politically correct answer, and this is why I'm saying you are a role model for everyone who wants to join politics. Sir, the last question that I will ask you on behalf of everyone, and this is the absolute final question. This was somebody had asked saying a beginner's guide to join politics. I'm just trying to pull up that question. But what would be a beginner's guide to join politics? If somebody wants to join politics, what is it that they should do? देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि एटलीस्ट मतलब IIM के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि सेंसिबल लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा संदेश ये होगा कि पॉलिटिक्स इज लाइक अ मिशन। देखिए, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये मिशन है। और जो आना चाहता है वो ये समझ ले कि इन पॉलिटिक्स नेम एंड फेम इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको बार बार चुनकर भी देते हैं, लोग आपको सिर पर भी लेते हैं। इसलिए इमेज मेकिंग, नेम, फेम, इसका विचार न करते हुए अगर आप में ये क्षमता है कि आप मेहनत कर पाएंगे, लोगों के बीच जा पाएंगे, तो यू कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन। और दूसरा मैं कहता हूं कि फॉर अ वेरी गुड पॉलिटिशियन पेशेंस इज अ वर्च्यू। आपको 4 गाली खाने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और लोग गाली किसको देते हैं? जिससे एक्सपेक्ट करते हैं उसको ही देते हैं। तो आप में ये पेशेंस होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि भाई आपने एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया, तो पेशेंटली आपने उसको सुनकर एक्सपेक्टेशन पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये पेशेंस आप में होगा तो ये आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। सर, on that note, I will like to conclude this and say that आपने जैसे बताया that patience is very important to become a politician. Sir, one thing that I had in abundance in my childhood, क्योंकि मैं शतरंज खेलता था सर, चेस खेलता था, पेशेंस बहुत था सर। अभी as I've grown up, my patience level has decreased. So one thing that I am definitely not going to join is politics. But sir, but if I had to join, sir, you'll take me. या this is open offer। मैं तो कल ही आपका डिक्लेरेशन कर देता हूँ। Right. Sir, but you are the sweetest. Like I said, I started with this, I will end with this. You are the sweetest, most affable, cutest, and most dynamic chief minister that I have seen in my entire life. It's since the last 10 years or 12 years since I've started following Indian politics. If there is one man that I have tremendous respect for, it's the person who's sitting on the other side of the screen. We are maintaining social distancing, and that is why we are sitting like this. But I am glad that in this time of social distancing, sir, आपने समय निकाल के आप युवा को बात करने के लिए सर, आज मेरी हिंदी फाइनल क्वेश्चन आप जाने के पहले, बिफोर यू लीव सर, आज मेरी हिंदी थोड़ी बेहतर थी? 10 में से 9। सर, अभी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ना पक्का 100%. But on behalf of everyone at IIM, sir, thank you so much for. Thank you everyone. Thank you, sir. Bye bye. Thank you. Bye, sir.